નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। ઘણી બધી વખત તો આપણને એવું લાગે કે સંસદ ભવનના જે આપણે ન્યૂઝ જોઈએ એ ન્યૂઝની અંદર દેશના વડાપ્રધાનની હાલત એવી થઈ ગઈ છે કે જેમ મંદિરના ઘંટાને કોઈ પણ વગાડીને વયો જાય એવી જ રીતે છેલ્લા કેટલા દિવસથી સંસદ ભવનની અંદર નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને અમિત શાહની હાલત કંઈક એવી દેખાઈ રહી છે। જે રીતે રાહુલ ગાંધીએ થોડા દિવસ પહેલા ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પ્રહાર કર્યા અને નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને અમિત શાહની જે સંસદ ભવનની અંદર બોલતી બંધ કરી દીધી છે, ત્યારે આજે દોસ્તો હું તમને એવો વિડીયો બતાવવાનો છું કે જેને સાંભળીને તમારા પણ હોશ ઉડી જશે અને તમે પણ એક વખત એવું કહી ઉઠશો કે ખરેખર હવે નરેન્દ્ર મોદીને રાજકારણ છોડી અને વડાપ્રધાનમાંથી રાજીનામું આપીને સંન્યાસ લઈ લેવો જોઈએ। કારણ કે સંસદ ભવનની અંદર નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જે અત્યારે ધજિયા ઉડે છે, જે રીતે એમની બેઇજ્જતી થાય છે, ખરેખર આ ન્યૂઝ જો વિદેશ સુધી પહોંચતા હોય ને તો ત્યાંની જનતાને પણ ખબર પડી જાય કે હવે ભારતના વડાપ્રધાનની કોઈ એટલી બધી ગરિમા રહી નથી। કોઈ પણ વ્યક્તિ સંસદ ભવનની અંદર આવી અને નરેન્દ્ર મોદીના ધજિયા ઉડાવી નાખે છે। એમનું કારણ શું છે દોસ્તો? એમનું કારણ છે કે ટેકાવાળી સરકાર છે। ટેકાવાળી સરકારના હિસાબે નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહ ઊંચા અવાજે વાત નથી કરી શકતા, કારણ કે એમને ખુદને ભરોસો નથી કે ચંદ્રબાબુ નાયડુ અને નીતિશ કુમાર ક્યારે દગો દે, એમને પોતાને ભરોસો નથી। એટલે નરેન્દ્રભાઈ મોદીની જ્યારથી બહુમતીવાળી સરકાર હાથમાંથી સરકી ગઈ છે ત્યારથી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને અમિત શાહ માનો મોઢા પર ટેપ લાગી ગઈ છે, ઊંચા અવાજે વાત નથી કરી શકતા। જે રીતે સંસદ ભવનની અંદર ગર્જના કરતા હતા નરેન્દ્રભાઈ મોદી, અને હમણાંની જ આપણે વાત કરીએ તો ચૂંટણી પ્રચાર પ્રસાર દરમિયાન જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સ્ટેજ ઉપરથી રાડો પાડીને ભાષણો કરતા હતા, એ ભાષણો જોઈને આપણને એવું લાગતું હતું કે 400+ નહીં પણ 500+ આવી જશે, પણ શું થયું? જનતાએ મુંહતોડ જવાબ આપી દીધો। ત્યારે સંસદ ભવનની અંદર હવે નરેન્દ્રભાઈ મોદીના કેવા ધજિયા ઉડાવે છે વિપક્ષના નેતાઓ। આવો આપણે સંજયસિંહે જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉપર પ્રહાર કર્યા છે અને જે રીતે અરવિંદ કેજરીવાલને ખોટા કેસોમાં ગિરફતાર કર્યા છે, એ વાતને લઈને અરવિંદ કેજરીવાલના આ મામલાને લઈને સંજયસિંહે નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉપર કેવા પ્રહાર કર્યા છે, વિડીયો પૂરો સાંભળજો અને શેર કરજો દોસ્તો। 2014 में भारत के राष्ट्र निर्माण की नींव रखी गई मान्यवर। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं। इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, चौधरी चरण सिंह जी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं। अरे सबको छोड़ दीजिए, क्या स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं? आप जब अपनी तारीफ करने लगते हैं तो अपने लोगों को भी भूल जाते हैं। कम से कम ये तो मानिए कि 7 साल उनका कार्यकाल रहा, उसकी तारीफ कर देते आप। लेकिन व्यक्तित्व का संकट है जो आपने कहा, कैसे तारीफ करें, कैसे चर्चा करें। और नया भारत की बात कही गई मान्यवर, निश्चित रूप से नया भारत बना है। 2014 से हमने देखा है नया भारत, जिस नए भारत के अंदर मॉब लिंचिंग करके लोगों को मारा गया। हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 15 लाख का वादा करके इस देश के लोगों को धोखा देने का काम किया गया। हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने की बात कह के 84% रोजगार घटा है। और हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 45 वर्षों में बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो इस कार्यकाल में बढ़ा है। हमने देखा है नया भारत मानव, देखा किस तरह का वातावरण इस पार्लियामेंट के अंदर बनाया गया, लोकसभा के अंदर बनाया गया। हमने देखा मान्यवर, इस संविधान के तहत इस लोकसभा राज्यसभा का गठन हुआ है। यह लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है मान्यवर, और इस सर्वोच्च मंदिर में जय श्री राम का कोई नारा लगा रहा है, कोई अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है, कोई जय मां काली का नारा लगा रहा है, कोई राधे राधे का नारा लगा रहा है। आप इन नारों से खुश हो सकते हैं, ये लेकिन धर्म के प्रचार का अड्डा नहीं है, ये मुल्क के संविधान की रक्षा का अड्डा है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा का अड्डा है मान्यवर। जिस सपने को लेकर
हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस सपने की रक्षा को करने का ये मंदिर है मान्यवर। यहां पर नारे लगा के हम एक दूसरे के ऊपर खुश हो सकते हैं, वंदे मातरम पे सवाल उठाते हैं, मुसलमानों की देशभक्ति पे आप सवाल उठाते हैं, और कुछ लोग ऐसी टिप्पणी भी करते हैं जो मेरी समझ में नहीं आता। मैं अन्ना जी के आंदोलन के मंच का संचालन कर रहा था मान्यवर, मेवात से एक मुस्लिम लड़की उस मंच के संचालन के दौरान कही कि उसने कहा कि मैं समर्थन देने आई हूं, भाषण देना चाहती हूं। भाषण जब उसने समाप्त किया उस मुस्लिम लड़की ने, तो उसने कहा भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं उस विचारधारा से सहमत नहीं हूं, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि वो वंदे मातरम कहने से खत्म हो जाए। इस तरह की सोच के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं जिस सुल्तानपुर के छोटे से शहर में काम करता था, वहां मेरे साथ शमशाद भाई काम करते थे, बहुत आपसे ज्यादा तेज भारत माता की जय वो लगा सकते हैं, वंदे मातरम लगा सकते हैं। आप आज इस नए भारत में कर क्या रहे हैं? झारखंड में क्या हुआ मान्यवर? चोरी के आरोप में एक आदमी को पीट के मार दिया गया इसलिए कि वो मुसलमान था, एक वर्ग विशेष से था। क्या इसकी चिंता इस सदन को नहीं होनी चाहिए? क्या धर्म के नाम पे इस देश के अंदर बंटवारे चलते रहेंगे? ये विविधता में एकता वाला देश है, यहां पे सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान से रहने का हक है। लेकिन आपको तो दाढ़ी से आपत्ति हो जाती है, टोपी से आपत्ति हो जाती है। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखाकर जिन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्लाह को। जब फैजाबाद की जेल में उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, उनसे पूछा गया आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन पे। यह है मुसलमानों का इतिहास, पढ़ लेना। बहादुर शाह जफर के इतिहास को पढ़ लेना। उनके बेटों का सर कटवा के रंगून की जेल में उनके सामने रखा गया मान्यवर। पुलिस के, अंग्रेज के पुलिस अफसर जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, तो उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज अफसर को जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के मुसलमानों के इतिहास को पढ़िए तो उनके प्रति आपके मन में सम्मान पैदा होगा। और ये दाढ़ी और टोपी से और वंदे मातरम लगाने से और अल्लाह अकबर कहने से किसी का धर्म अगर कमजोर हो जाता है, तो माफ कीजिएगा, आपका धर्म, आपके धर्म की व्याख्या बहुत कमजोर है। हिंदू धर्म जिसको हम मानते हैं, वो हिंदू धर्म तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और हम आप भारत माता की जय लगाते हैं, आप भी जोर से लगाते हैं भारत माता की जय, हम भी जोर से लगाते हैं भारत माता की जय। लेकिन मुझे बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी मां है जो अपने बच्चों में भेद करती है? दलित बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, मुसलमान बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, पिछड़े बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, सिख बच्चे को अलग निगाह से देखेगी। अरे मां तो वो मां होती है जो अपने कमजोर बच्चों का ज्यादा ख्याल रखती है। भारत माता की जय लगाना है तो दिल से लगाइए। पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का साथ दीजिए, तब इस देश का विकास होगा। चमन में एक तलाते रंग बू से बात बनती है, चमन में एक तलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इस बदलिए, इस धारणा को बदलिए, इस विचारधारा को बदलिए। आपने संघीय ढांचे का उल्लेख किया मान्यवर, देश के संघीय ढांचे को आप कैसे मजबूत कर रहे हैं, ये हमने दिल्ली में बहुत अनुभव किया है। आपने एक ऐसी सरकार को 4.5 साल तक चलने नहीं दिया जिसके इतिहास को अगर आप समझेंगे तो जरूर थोड़ी शर्मिंदगी आपको होगी। एक ऐसी सरकार जिसने बिजली का दाम आधा किया, जिसने 20,000 लीटर पानी मुफ्त करने का काम किया, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बनाया, जिसकी चर्चा अमेरिका में हो रही है, फ्रांस में हो रही है, जर्मनी में हो रही है। एक ऐसी सरकार जिसने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया, एक ऐसी सरकार जिसने अपने बजट का 26% मान्यवर शिक्षा के ऊपर खर्च किया, एक ऐसी सरकार जिस सरकार ने 20% अपने बजट का हेल्थ के ऊपर खर्च किया। ऐसी अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ आप रोज सीबीआई छोड़ देते हैं, रोज ईडी छोड़ देते हैं, 25-25 विधायकों को उठा के गिरफ्तार करके जेल में डालते हैं।
आपके इस राष्ट्रपति के भाषण में कहा गया, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देश में बढ़ावा देना चाहते हैं। वाह भाई, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री मेट्रो अगर अरविंद केजरीवाल जी करना चाहते हैं तो आप उसमें अड़ंगा डालते, कहते हैं 8 महीने तक हमको कुछ कर नहीं सकते। अरे फ्री मेट्रो से ट्रैफिक कम होगा, प्रदूषण कम होगा, जो मेट्रो घाटे में चल रही है उसको हम अपने पास से मुनाफे के बजट से पैसा देंगे, आपका लाभ होगा। इसलिए साथियों, इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, जेट एयरवेज के हजारों एम्प्लॉय आपकी नीतियों के कारण बेरोजगारी की कगार पे पहुंच गए और अब तक 4 कर्मचारी उनके आत्महत्या कर चुके हैं। शिक्षा मित्र लाखों की संख्या में है, उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। प्रेरक शिक्षक लाखों की संख्या में है, पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। मान्यवर, सबको 10-10, 12-12 मिनट दिया। आपका भी સાંભળ્યું ને? તો અમે કીધું એમ, હવે મંદિરના ઘંટી જેવી હાલત થઈ ગઈ છે, કોઈ પણ આવીને વગાડીને વયા જાય છે। અમિત શાહના તો મોઢા પર માનો ટેપ જ લાગી ગઈ છે, કઈ મોઢામાંથી શબ્દ જ નથી નીકળતા। ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી